Okay? Okay, so we will do the remaining part of cell, and today we are supposed to learn the cell organelles in detail. About the cell organelles. Now, cell organelles, they like to define cell organelles as the membrane bound compartments present inside the cell doing certain specific function for the cell. I like to define it in this way. Okay, what did I define? As the membrane bound compartments present inside the cell doing certain specific functions for the cell. Now, when we learn about cell organelles, under cell organelle, we ought to learn about certain endomembrane system also and certain straightforward cell organelles also. First thing that comes in our mind is endoplasmic reticulum. Look at the name, it's so complicated. Endoplasmic reticulum. These endoplasmic reticulums are generally well regarded as, well known as the endomembrane system. Sir, under endomembrane system, endoplasmic reticulum comes, and number 2 that comes is Golgi apparatus. Many like to say it as Golgi body. That's also endomembrane system. Now these two have coordinated function. Sir, what do you mean by coordinated function? By coordinated function, I means that these two works together to do certain functions for the cell. Now, what is this function? How is this function? Let us try to understand about it, that what is endoplasmic reticulum and what is Golgi apparatus and what are their functions and what do they do and where are they present in the cell. If I like to talk about endoplasmic reticulum, I would like to say that if there is cell and if there is the nucleus, the endoplasmic reticulum starts from the nuclear membrane, and it's a channel-like membranous system which starts from the nuclear membrane and ends up in the cytoplasmic membrane or plasma membrane or cell membrane. This is how is the endoplasmic reticulum. And there are two types of endoplasmic reticulum, that is ACR and RER. ACR is smooth endoplasmic reticulum, RER is rough endoplasmic reticulum. Now, the fact is this, that these endoplasmic reticulum is a channel-like system and is also responsible for protein and lipid synthesis inside the cell. Protein and lipid synthesis inside the cell. The ACR is responsible for the lipid synthesis. The RER is responsible for the protein synthesis. Sir, protein synthesis is done by ribosomes, we hear. Yeah, of course you are right. If you briefly remember, the concept of protein synthesis is that inside the nucleus there are chromatin threads. Chromatin threads are actually condensed form of DNA, and inside the DNA there are sequences which are known as genes, and the genes are giving rise to messenger RNAs. The messenger RNAs come out of the nucleus through the nuclear pore. There are pores in the nucleus, small holes in the nucleus. The messenger RNA comes out. The messenger RNA is nothing but is just a Xerox copy of the genes, and the sequence of the messenger RNA guides the synthesis of that what type of protein, what structure of protein, what should be the function of the protein. And depending on this protein, there are characteristics developed by the cell, that what type of function it will do. Be it a eukaryotic cell, be it a prokaryotic cell, be it a cell of any cell of any organ of your body.
This is truth for everyone, and this has been taught in your previous videos. Right or wrong? Yes or no? So say yes or no. Now the fact is this, that these messenger RNAs, in case of eukaryotes, because eukaryotes are the one which have this endomembrane system, endoplasmic reticulum or Golgi apparatus. In fact, cell organelles are present inside eukaryotes only, and this is a major difference between eukaryotes and prokaryotes, that eukaryotes have cell organelle, prokaryotes don't have any cell organelle. Anyway, so inside eukaryotes what happens, the messenger RNA comes out inside the endoplasmic reticulum. If I little bit magnify the structure of the endoplasmic reticulum would look like this. Like intestine. No, not like intestine. Not like intestine. Let me complete the diagram. Although I am not very good at drawing, but I try. So this is how. ये तो मैंने दो ऐसे चैनल ड्रॉ किए हैं ना, ऐसे बहुत सारा, ऐसे खिची 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 करके बहुत सारा चैनल्स है. और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बॉडी पे अगर छोटे 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 ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख जाए तो पता लगना चाहिए कि भाई ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो लगे हुए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बॉडी में, these are actually good. These are actually ribosomes, and hence this type of endoplasmic reticulum is actually the rough endoplasmic reticulum, and if these ribosomes are not present, they will be regarded as smooth endoplasmic reticulum. And this jagah inside the endoplasmic reticulum is the lumen of the endoplasmic reticulum. ये इसी के अंदर मैसेंजर आरएनए निकल के, यहाँ पे भी राइबोसोम्स लगा हुआ है, मैसेंजर आरएनए निकल के आता है और यहाँ पे प्रोटीन वगैरह बनता है. मैंने सिखाया था ना कि मैसेंजर आरएनए आके निकलेगा तो पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे राइबोसोम्स उसको घेर लेगा और उसके बाद उसके सीक्वेंस को कॉपी करके प्रोटीन तैयार करेगा. सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यस और नो? तो ये जो बात है, ये जो राइबोसोम्स है, ये ऐसे लगा हुआ है एंड मैसेंजर आरएनए यहाँ पे निकल के घूम रहा है. ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए से पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बनता है और पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर से इसी के अंदर प्रोटीन बन जाता है. इज दिस क्लियर टू यू? ठीक यही काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर. लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि ये डॉट 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 स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स नहीं रहता. सर इसका मतलब राइबोसोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि मैसेंजर आरएनए के साथ राइबोसोम्स बाइंड करेगा, उसी के बाद प्रोटीन बनेगा. तो राइबोसोम्स अगर नहीं रहेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फायदा? उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फायदा है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड तैयार करता है, प्रोटीन नहीं. However, the interesting fact is this, that smooth endoplasmic reticulum चाहे प्रोटीन तैयार करे, चाहे लिपिड तैयार करे, and rough endoplasmic reticulum चाहे प्रोटीन तैयार करे, दोनों मिलके इन कोऑर्डिनेटेड फैशन, दोनों मिलके, एक जन लिपिड बना रहा है, एक जन प्रोटीन बना रहा है, और दोनों मिलके जितना सेल मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन है या फिर दूसरे सेल ऑर्गेनेलीज है जिसके मेम्ब्रेन में लिपिड्स और प्रोटीन्स है, जो मेम्ब्रेन है सेल में जितना भी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, मेम्ब्रेन, the semi-permeable membrane which is actually made up of, which is a lipid bilayer structure. I have taught you this. Yes sir. Which is a lipid bilayer structure. ये और इसके अंदर ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी रहता है. राइट और रॉन्ग सिखाया था? ये मेम्ब्रेन बनता है दोनों के कोऑर्डिनेटेड एक्शन से, क्योंकि आरईआर इसका प्रोटीन बना देता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका लिपिड बना देता है, एंड हेंस endoplasmic reticulum as a whole with coordinated action of smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum is responsible for membrane biogenesis. Is responsible for what? Is responsible for membrane biogenesis. Then this is a truth. Sir, membrane biogenesis माने कि शुद्ध सेल मेम्ब्रेन टा बना है? No.
मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस मतलब सेल मेम्ब्रेन बनाता है ऐसा नहीं है। सेल में जहां जहां भी मेम्ब्रेन की प्रेजेंस जरूरत होगी वहां वहां मेम्ब्रेन बना देगा ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर। सर यहां तक कि न्यूक्लियस का भी जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो भी तो लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ है। यस, तो वो भी क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है? यस, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। सर दूसरे सेल ऑर्गेनेलिज जो होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, वहां पे भी तो मेम्ब्रेन बन जाता है, वो भी क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से ही वो मेम्ब्रेन आया है। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ही उन लोगों का मेम्ब्रेन बनाया है, लेकिन उसका पैकेजिंग और प्रोसेसिंग दूसरे जगह में होके फिर उसका बन चुका है। लेकिन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल। और या फिर ऐसे याद रख सकते हो कि जब सेल डिवाइड करता है तब सेल डिवाइड करता है ऐसे, ये सेल है, सेल डिवाइड करके दो नए सेल्स बनाएंगे। तो यहां पे जो पुराना सेल मेम्ब्रेन है जिसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट है, यहां पे और ज्यादा लिपिड्स और प्रोटीन्स की जरूरत होगी, तो ये सब सेल मेम्ब्रेन भी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन की जो जरूरत होगी दो नए सेल्स के लिए, वो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बनाता है। क्लियर कर पाए? देखो, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा, ह्यूमन बॉडी में याद रखना ये इंफॉर्मेशन, ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी में फाइब्रोब्लास्ट बोल के सेल्स होते हैं, सब ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और गॉबलेट सेल्स ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, सॉरी गॉबलेट सेल्स पैनक्रियास में रहते हैं, ठीक है। इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत हाई अमाउंट में रहता है। सर क्यों? क्योंकि इनका काम ही है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, तरह तरह के प्रोटीन बनाना, इनका फंक्शन ही ऐसा है। सोचो तुम्हारे बॉडी में कोई एक ऐसा सेल जिसका काम ही है प्रोटीन्स बनाना, जैसे तुम्हारा मसल सेल हो गया। तुम्हारा मसल सेल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से भरा हुआ है, नहीं तो मसल सेल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। मसल सेल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसीलिए तुम मूवमेंट कर सकते हो, कोई भी टाइप ऑफ मूवमेंट, हाथ ऐसा करना, ऐसे लिखना, मुंह से चिबा के खाना, कुछ भी मूवमेंट जो करते हो उसके पीछे मसल्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसल्स इसीलिए तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को मूव करा पाता है। द रीजन इज मसल इज मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। The two proteins, the name of the two proteins are actin and myosin. ACTIN, actin, MYOSIN, myosin. ये जो प्रोटीन्स है, तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने के लिए जो सेल जिसको प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है और प्रोटीन उसी सेल के अंदर बनना है, तो वो सेल हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत हाई अमाउंट में अपने अंदर रखेगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना ह्यूमन बॉडी में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ह्यूमन बॉडी में लीवर सेल्स में, याद रखना है क्वेश्चन पूछता है, लीवर सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसका काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना। रुको एक बार वीडियो पॉज करो तो। ओके, क्या हुआ? मैं वीडियो पॉज के नाच कर रहा था, यही तो वीडियो में दिखाना चाहता है। ठीक है, मैं नाच दूंगा, तू समझ ले। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is present in liver cells in no it's on। मेरे को टेंशन लेने को, तुमको दिख रहा है कुछ, तू उधर जाके बैठो ना, आधा पे बोल दे जाओ। सच में नहीं बैठी कि मैं, तू ऐसा नहीं कर रहा। हाँ बस बस वहां बैठ जाओ। अभी दिख रहा है? तो मैंने बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल्स में रहता है, इंटेस्टाइनल सेल्स में रहता है, एडिपोज सेल्स में रहता है, मसल सेल्स में रहता है। अरे बाप रे, ओ आरईआर तो मसल सेल्स में रहता है, ये मैं बताना भूल गया। मसल सेल मतलब बताया था, लिखना भूल गया।
अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल्स में रहता है, इंटेस्टाइनल सेल्स में रहता है, ठीक है। फिर इंटेस्टाइनल सेल्स में रहता है, लीवर सेल्स में रहता है, फिर एडिपोज सेल्स में रहता है। हाँ, एडिपोज सेल्स में तो रहेगा। बोलो तो एडिपोज सेल्स कौन से वाले सेल्स होते हैं बच्चों? The cells which stores fats. Tiger Shroff has adipose cells in his body. Yes. Even Tiger Shroff has adipose cells in his body. Or Hrithik Roshan. Means a person who has what do you call them? Abs. Abs. Look, don't smile looking at my abs. They might have 6 packs, 7 packs, 8 packs. I have family pack. So don't smile. Devanjan is very happy. Anyway, so abductors are made up of what? Abs, you know the full form of abs? Abductors. Okay? Abductors. So abs are made up of muscles, true muscles, right? एकदम पूरा मसल्स होता है, लेकिन उनके पास भी एडिपोज सेल्स होता है बेटा। एडिपोज सेल्स में फैट अगर स्टोर नहीं होगा, लिपिड्स और फैट्स एक ही चीज है, लिपिड्स और फैट्स एक ही चीज है। एडिपोज सेल्स में अगर फैट नहीं स्टोर होगा, एडिपोज सेल्स में अगर फैट नहीं स्टोर होगा तो तुम्हारा बॉडी कभी हीट इंसुलेट कर ही नहीं पाएगा। सर, बॉडी हीट इंसुलेट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब क्या बताना चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूं कि बॉडी में कभी अगर तुम्हारे अंदर की गर्मी बाहर के टेम्परेचर के साथ मैच हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। सर्टेन लेवल ऑफ होम्योस्टेसिस इज रिक्वायर्ड। होम्योस्टेसिस मीन्स योर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर शुड नॉट मैच विद द आउटसाइड टेम्परेचर। इसका बहुत सारा प्रोसेस है। इसका ब्लड जो हमारा घूमता है, हार्ट का 4 चेम्बर्स, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो घूमता है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। समवॉट एडिपोज टिश्यू भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि बॉडी के अंदर का हीट वो इंसुलेट कर देता है, बाहर निकलने नहीं देता। समझ में आया? जो लोग मोटे हैं मेरे तरह, हेल्दी है, एक्चुअली क्यूट है मेरी तरह, ठीक है, तो उनके बॉडी में एडिपोज सेल्स में क्या हुआ है, फैट जमते 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 एडिपोज सेल्स का कैपेसिटी खत्म हो गया फैट जमा करने का। इसीलिए विसरल और सबक्यूटेनियस फैट जमने लगा है और इसीलिए वो मोटा दिखता है। मतलब एडिपोज सेल्स का या एडिपोज टिश्यू का काम है फैट को स्टोर करना, बॉडी में जो भी फैट जा रहा है न्यूट्रिशन से। लेकिन वो लिपिड या फैट अगर ज्यादा मात्रा में चला जाए या ज्यादा मात्रा में कुछ दूसरा खाने के लिए, जैसे कि फैट तुम नहीं खाओ, तुम अगर चीनी खाओगे, मिठाई खाओगे, तो भी क्या होता है, तुम्हारा जो चीनी और मिठाई है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो तुम्हारे लीवर सेल्स में स्टोर होना चाहिए। लीवर सेल का भी तो एक कैपेसिटी है ना। जब वो बढ़ जाता है तो लीवर क्या करता है, उसको फैट में कन्वर्ट करके एडिपोज के पास भेज देता है। अब एडिपोज का भी कैपेसिटी खत्म, एडिपोज क्या करता है, बाहर रहो भाई, मेरे पास मत आओ। तब जम जाता है सबक्यूटेनियस फैट, मतलब स्किन के नीचे फैट जमना स्टार्ट होता है। सबक्यूटेनियस, स्किन के नीचे, जिसका मतलब है क्यूटेनियस मतलब स्किन, ठीक है। तब वो मोटा दिखता है और उसी मोटे आदमी का और खाते जाएगा, मिठाई विठाई, फैट वैट, तेल वेल खाते जाएगा, तो उसका विसरल फैट जमने लगेगा। सर, विसरल फैट का मतलब, विसरल का फैट का मतलब ऑर्गन के अंदर अंदर फैट जमने लगेगा, फैटी लिवर। समझ में आया? इंटेस्टाइन के अंदर फैट जम जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? और पूरा जब भर देगा वो फैट जमा के, किसी किसी बदनसीब का ऐसा होता है कि बूढ़ा टाइम पे, आई मीन एजेड हो जाता है जब, तब हार्ट का मसल वीक हो जाता है, ठीक है, और हार्ट से जो वेन्स और आर्टरीज निकलते हैं वहां पे फैट जमने लगता है। तभी आदमी जाके स्टेंज बैठाता है, ये बैठाता है, वो बैठाता है, क्योंकि वेसल्स भी वीक हो गया है ना, तो वहां पे जाके फैट जम, सो दैट विल लीड टू मायोकार्डियल डिस्फंक्शन, हार्ट अटैक। मायोकार्डियल डिसफंक्शन, MYO,
CARDIAL, मायोकार्डियल डिसफंक्शन, हार्ट अटैक, साइंटिफिक। आ रहा है मजा पढ़ के? हाँ, तो एनीवे, लेकिन एडिपोस सोचो एक हेल्दी आदमी है, चलो मोटे आदमी का बात तो हो गया, मेरा फ्यूचर मैंने बता दिया, लेकिन एक हेल्दी आदमी, ठीक है, पीपल which are loved by girls. Now you know what kind of people. You will never be loved by a girl. You will never be loved by a girl. ठीक है, जैसे मेरा खुद का वीडियो फेमस नहीं होता है, क्यों? देख के लगते छी, इसका वीडियो नहीं देखना है, मोटा हूँ। फिजिक्स वाला का कौन सा होता है? फिजिक्स वाला जब दुबला था तब कर रहा था ना। फिजिक्स वाला हाई लेवल है भाई, मैं क्या फिजिक्स वाला के साथ क्या, किसके साथ किसका कंपेयर कर रहा है? मेरे को आता है कुछ। सुन, क्या बोल रहा था मैं? हेल्दी आदमी यानी जिसका एब्डक्टर्स वगैरह है, उसके पास भी एडिपोस टिश्यू है, और उस एडिपोस टिश्यू में जब लिपिड स्टोर हो रहा है, तो उस लिपिड, मैंने क्या बोला था, तुम चीनी खाओगे तब भी जाके वो लिपिड में कन्वर्ट होता है, लिवर में जब कैपेसिटी खत्म हो जाता है कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने के लिए, तो वो जो लिपिड बन रहा है कौन बनाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एडिपोस सेल में अगर स्टोर होना है तो एडिपोस सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। इज दिस क्लियर टू यू? सर फिर इंटेस्टाइनल सेल में क्यों है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? क्योंकि देख, इंटेस्टाइन में बहुत सारा डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह निकलता है, हार्मोन्स वगैरह निकलता है, हार्मोन्स नहीं निकलता, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह निकलता है, तो उसमें लिपिड्स की जरूरत होती है। बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो प्रोटीनिशियस, एंजाइम्स तो प्रोटीनिशियस ही होता है, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं, प्रोटीन के साथ साथ थोड़े लिपिड भी जरूरत होता है उसमें, क्योंकि लिपिड, प्रोटीन, फैट्स, डीएनए, आरएनए, यही तो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे बनता है सब कुछ। तो वहां पे भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत होती है। आया मजा पढ़ के? समझ में आया? तो मैं ये समझ सकता हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ी ना ऐसा, मतलब एक ऐसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, स्मूथ और रफ, ठीक है, एक रफ है, एक स्मूथ है, एक एक थोड़ी ना है, ये तो नेटवर्क फैल के है पूरे सेल में, सेल के एक पार्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या करता है, सेल को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, एंड ऑल्सो क्या करता है, सेल को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, एंड सेल को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, एंड ऑल्सो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। सर सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब क्या हुआ? सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब ये हुआ कि सेल जो है, एनिमल सेल स्पेशली, एनिमल सेल फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि उसका मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। पता है तुम लोगों को ये चीज? तो थोड़ा बहुत तो रिजिडिटी चाहिए होगा ना, वो रिजिडिटी, क्योंकि ये चैनल लाइक स्ट्रक्चर है और फॉर्म होके बैठ रहा है, फॉर्म, FIRM, फॉर्मली बैठा रहता है ऐसे, तो ये क्या करता है, थोड़ा बहुत रिजिडिटी भी प्रोवाइड कर देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दिस क्लियर टू यू? तो कोई अगर पूछ दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, बता पाओगे? कोई अगर पूछ दे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 4-5 फंक्शंस बताओ, बता पाओगे? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, सेल को कंपार्टमेंट में ब्रेक करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, दोनों मिलके मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करता है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लीवर सेल्स में रहता है डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। सर लीवर सेल्स में डिटॉक्सिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? अथर्व मुझे पूछ रहा था कि डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है सर? राइट, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है अगर शरीर में, बॉडी में टॉक्सिन्स एंटर करे, टॉक्सिन्स मतलब प्रोटीनिशियस पार्टिकल विच इज हार्मफुल, ठीक है, लीवर में बहुत सारा ऐसा रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है लीवर के अंदर, जिससे हार्मफुल सब्सटेंसेस पैदा होते हैं। इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है जिससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म चलता है, तुम्हारा शरीर चलता है, तुम्हारा सेल्स फंक्शन करता है, जरूरत है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होता है, बनता है, लेकिन बाई प्रोडक्ट्स भी तो बनता है जो हार्मफुल है।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि लीवर क्लीन रहे। ब्लड में अगर कोई टॉक्सिन तुमने खा लिया, ये कर लिया, ब्लड में वो टॉक्सिन मिक्स हो जाता है, ब्लड जाके हेपेटिक पोर्टल सिस्टम से लीवर में घुसता है एक ना एक बार, ठीक है। तो ब्लड जाके लीवर में इसीलिए घुसता है क्योंकि बहुत सारा कुछ लीवर में भी स्टोर करना होता है, ग्लूकोज वगैरह, ठीक है, ग्लाइकोजन, ठीक है, तो लीवर में जाके स्टोर करता है। तो ब्लड जो है वो लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए जाता है या कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने के लिए जाता है। तो जब लीवर में जाता है, लीवर में ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है या लीवर सेल्स डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है। और ये डिटॉक्सिफिकेशन इज पॉसिबल बाय मेकिंग द टॉक्सिन्स डिग्रेडेड एंड दे आर एम्बेडेड इनसाइड द लिपिड्स। लिपिड के अंदर एम्बेड करता है डिग्रेड करने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसका अलग से वेसिकल या वैक्यूल बना, वेसिकल बना। वेसिकल का मतलब समझाया था ना, छोटा सा है, मेम्ब्रेन बाउंड है और सर्टेन कंपोनेंट्स कैरी करता है। सेल में होता है वेसिकल। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ये सब टर्म्स, वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, फिर वेसिकल्स, वैक्यूल्स, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्न, सिस्टर्नी, ठीक है। पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। वेसिकल मतलब गोल गोल स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, उसके अंदर सब्सटेंसेस कैद रहते हैं। मे बी हार्मफुल सब्सटेंस कैद हो सकता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, मे बी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस कैद हो सकता है किसी जगह ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन वेसिकल्स बनता है। तो तुमको नहीं लगता कि डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जरूरत होगी क्योंकि लिपिड की जरूरत है वेसिकल बनाने के लिए? यस और नो? अंडरस्टूड? एब्सोल्युटली अंडरस्टूड। तो अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तुम लोगों को याद करना पड़ेगा कि तुम लोगों को कॉन्सेप्चुअली याद रहेगा? इतना बताओ, ऐसे जो मैंने पढ़ा है कॉन्सेप्चुअली याद रहेगा कि तुम लोगों को लर्न करना पड़ेगा? याद रहना चाहिए कॉन्सेप्चुअली। यस और नो? दिस थिंग शुड बी कॉन्सेप्चुअली रिमेंबर्ड बाय यू। अच्छा, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद जो आता है वो है गोल्गी apparatus। तो वीडियो को थोड़ा पॉज करो। ओके ओके, लिसन। So now we will learn the Golgi apparatus. What? The Golgi apparatus. बहुत कुछ, इसको क्या बोलने में मजा मिलता है तुम लोगों को? गोल्गी बॉडी या गोल्गी बॉडी। तुम लोगों को पता है प्लांट सेल्स में ये गोल्गी बॉडी बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं, सप्रेस्ड फॉर्म में रहता है और उसको डिक्टायोसोम करके बुलाया जाता है। क्या करके बुलाया जाता है? प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? डिक्टायोसोम। गोल्गी बॉडी प्रोमिनेंट होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में उतना को प्रोमिनेंट गोल्गी बॉडी होता नहीं है। सर गोल्गी बॉडी चीज क्या है? सर गोल्गी बॉडी चीज क्या है? बड़ी मस्त मस्त, नो सॉरी, चीज क्या है? ओके, देखो ऐसे सिस्टर्नी मिलके गोल्गी बॉडी बनाते हैं। सर सिस्टर्नी मतलब फ्लैटेंड वेसिकल्स। सिस्टर्नी मतलब क्या? फ्लैटेंड। मैंने क्या सिखाया था? वेसिकल्स ऐसा होता है, ये मेम्ब्रेन से बाउंड छोटे छोटे स्फेरिकल पार्टिकल्स नहीं बोल सकते, मेम्ब्रेन से बाउंड छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर एंजाइम्स कैद रह सकते हैं, आयंस कैद रह सकते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस कैद रह सकते हैं, कैद कर लेता है, राइट? और मेम्ब्रेन बाउंड करके कैद कर लेता है, उसको वेसल्स कहते हैं। इसी वेसल को अगर पिचक दो, वेसल को अगर पिचक दो तो फ्लैटेंड वेसिकल बन जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टर्नी। ऐसे सिस्टर्नी रहते हैं और सिस्टर्नी के इस ऊपर वाले फेस को कहते हैं सिस फेस, जो कि कनकेव फेस है, और जो कन्वेक्स फेस नीचे वाले फेस को कहते हैं ट्रांस फेस। खाली ऐसे सिस्टर्नी नहीं रहता बेटा, वेसिकल्स भी इसके साथ लगा हुआ रहता है। ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स लगे हुए रहते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे वेसिकल्स रहते हैं। और ट्रांस फेस से क्या होता है? ऐसे निकल के रहता है वेसिकल्स। आई बात समझ में? इसका फंक्शन क्या है सर? क्या करता है? ये सेल के अंदर रहता है, क्या करता है?
ये अगर सेल है तुम्हारा, ये अगर न्यूक्लियस है, ये अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये अगर स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहां पे गोल्गी apparatus बिल्कुल सामने रहता है उसका। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बना के गोल्गी apparatus को दे देता है। सेम टाइप ऑफ एंजाइम्स और सेम टाइप ऑफ प्रोटीन्स which are required in certain particular parts of the cell are being packaged and processed inside these secretory vesicles। ऐसे वेसिकल्स गोल्गी apparatus ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड बना के गोल्गी apparatus को दे देता है। कहां से आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी apparatus में देता है। गोल्गी apparatus उसको रिसीव करता है। कौन से फेस से रिसीव करता है? सिस फेस से रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उस यहां पे ऐसे प्रोटीन्स और लिपिड्स को ऐसे भगाता है एंड क्या करता है? उसको सेम टाइप ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स को एक साथ कैद कर लेता है वेसिकल्स के अंदर और ऐसे यहां पे वेसिकल सीक्रेट कर करके छोड़ देता है। यहां पे शायद वो वाले एंजाइम्स है जो केमिकल रिएक्शन करेंगे, यहां पे शायद वो वाले एंजाइम है कुछ और काम करेंगे, यहां पे शायद वो वाले एंजाइम्स है जो कुछ और दूसरा काम करेंगे, कुछ शायद प्रोटीन्स है जो सेल मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के लिए चाहिए। सबको अलग अलग वेसिकल्स में पैक करता है। पापा जब जाते हैं बाजार करने तो बाजार के जो बैग में होता है, जो अब ग्रोसरी शॉप में जाओगे या फिर किसी भी, अभी तो तुम लोग मॉल में जाते हो राइट, तो तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट ऐसे सोचना चाहिए कि तुम लोग शायद पूजा का सामान खरीदे हो तो वो एक अलग बैग में लेते हो, मच्छी या चिकन वगैरह खरीदे हो तो अलग बैग में लेते हो, बिस्किट वगैरह चाय पत्ती वगैरह अलग बैग में लेते हो, चावल दाल खरीदा है तो उसका बैग बड़ा बनता है तो वो अलग में लेते हो, राइट और रॉन्ग? खरीदाता है सब कुछ एक ही जगह से। ठीक उसी तरह सारे प्रोटीन्स और लिपिड्स एक ही जगह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है, लेकिन जैसे तुम अलग अलग पैक करते हो अलग अलग सामान, ठीक उसी तरह अलग अलग टाइप ऑफ एंजाइम्स एक साथ अलग अलग जगह में अलग अलग वेसिकल्स में पैक होता है। यानी पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग, ये प्रोटीन्स भेजता है और लिपिड्स भेजता है, वो अलग अलग वेसिकल्स में पैक होकर ऐसे ट्रांसफेस से निकल के चला जाता है। किससे बना हुआ है? बना हुआ है सिस्टर्नी से और वेसिकल्स से। टिब्यूल्स भी बोल सकते हो, छोटे 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 टिब्यूल्स भी रहते हैं, ऐसे पूरा कनेक्शन है। इज दिस क्लियर टू यू? सब लगे हुए हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स को पैक करने में। ये गोल्गी apparatus बहुत ज्यादा रहता है कहां पता है? म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स में। सर म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स कहां रहता है? लाइनिंग में, इसोफेगस सॉरी ट्रैकिया के लाइनिंग में। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। सर विंड पाइप के लाइनिंग में मतलब यहां पे रहता है। हाँ, यहां पे रहता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। क्या रहता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स यानी जो सरफेस के सेल्स है। क्यूबॉइडल इन स्ट्रक्चर, इतना बड़ा बड़ा क्यूबॉइड होता है बे, ठीक है? सेल्स का मतलब इतना बड़ा नहीं, माइक्रोस्कोप के अंदर इतना बड़ा लगेगा, मेरे हाथ जितना बड़ा होगा इतना बड़ा सेल्स थोड़ी ना होगा, ठीक है? क्यूबॉइडल सेल्स होता है, उसमें इतना बड़ा होता है इसीलिए क्योंकि उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है और गोल्गी apparatus भी बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है। क्यों? क्योंकि जिस भी सेल का काम है सिक्रीशन करना, जैसे तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है। जो एपिथेलियल सेल्स है ट्रैकिया के लाइनिंग में, स्टमक के लाइनिंग में, लाइनिंग मतलब बाउंड्री में, पेरिफेरल में, ठीक है, वहां पे ये सब सेल्स रहता है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है। तुमको ठंडा लगता है तो सर्दी खांसी होता है तो निकलता है ना स्वादिष्ट चीज, देखते हो ना बाहर येलो येलो सा होता है, क्या है वो? देखो इसको क्रिंजी फीलिंग हो रहा है, कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगा। अरे पैथोलॉजिकल लैब में उसका टेस्ट होता है, कोरोना टेस्ट जब हो रहा था उसी का स्वैब लेके जा रहा था, वही लेके ऐसे पानी में घुला रहा था। सोच देख इसको सोच के कैसा फेस बना रही है। अच्छा ओके यू, लेकिन बेटा वही जो म्यूकस है वो म्यूकस तुम्हारे अंदर कितना काम कर रहा है पता है? कोई भी वायरस बैक्टीरिया जो एंटर करता है उसको घेर लेता है, स्प्रेड होने से बचाता है।
स्टोमक में ये म्यूकस सीक्रेट नहीं होगा तो स्टोमक में HCl गैस सीक्रेट होकर स्टोमक खुद को डिग्रेड कर देगा। स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस निकलता है स्टोमक से, गैस्ट्रिक जूस में HCl गैस रहता है, ठीक है। तो HCl गैस तो HCl एसिडिक है, तो वो तो स्टोमक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्टोमक के लाइनिंग को, ये म्यूकस बचाता है। हार्मोन सीक्रेट होता है अलग अलग ग्लैंड से, जहां से भी ये सिक्रेशन हो रहा है ना, ये ऐसे सीक्रेटरी वेसिकल्स निकलते हैं, एंजाइम्स और लिपिड्स और कुछ भी हो, एंजाइम्स और लिपिड्स एक साथ, सेम टाइप ऑफ एंजाइम्स और लिपिड्स ऐसे निकलता है। ये है तुम्हारे लिए गोल्गी एपेरेटस। इज दिस क्लियर टू यू? मजा आया पढ़ के? समझ में आया कि नहीं आया? इज दिस अंडरस्टूड? इज इट इंटरेस्टिंग? यस, ऑफ कोर्स इट इज सर, एंड वी अंडरस्टैंड दिस। डू यू or do you not? Yes, sir. So that is what is Golgi apparatus. It is named Golgi apparatus because it was discovered by Camillo Golgi. That is the reason why it is known as Golgi apparatus. Am I being able to make myself clear? अच्छा, एक बात है, Golgi apparatus पढ़ते पढ़ते दूसरा एक सेल ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ सकते हैं जिसका नाम है लाइसोसोम्स, क्योंकि लाइसोसोम गोल्गी apparatus से ही सीक्रेट होता है। ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो एक दूसरे सेल ऑर्गेनेल से बनता है। पूछ सकता है बच्चे ऐसा एक सेल ऑर्गेनेल का नाम बता जो दूसरा किसी सेल ऑर्गेनेल से, रिधिमा फोन घट रही है क्लास में बैठ के इंस्टाग्राम फेसबुक, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है पढ़ाई में। क्या घटिया पढ़ा रहा हूँ, घटिया पढ़ा रहा हूँ? सच बता, हाँ ना बोल भाई। हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये क्यों फोन देख रही है? क्या बोल रहा था? Name one cell organelle which is produced from another cell organelle. पूछ सकता है, लेकिन Golgi apparatus, my friend, is not actually cell organelle. It is an endomembrane system. याद रखना ये चीज। लेकिन अभी कॉपी बुक में तो लिखा हुआ है, स्कूल में लिखा देता है तो लिख देंगे सर, ठीक है। लेकिन याद रखना Golgi apparatus is actually a endomembrane system. हाँ, cell organelle consider करके endomembrane system which can also be considered as a cell organelle. However, if they ask you a question, name a cell organelle which is made from another cell organelle, the answer is lysosome. सर lysosome है क्या? lysosome कुछ नहीं है, ऐसा ही वेसिकल जो निकलता है, एक बड़ा वेसिकल ऐसा निकलता है जिसमें सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स या लाइटिक एंजाइम्स रहते हैं। क्या रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स और लाइटिक एंजाइम्स, जो किसी को भी ब्रेक कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर सकते हैं, लिपिड को ब्रेक कर सकते हैं, प्रोटीन को ब्रेक कर सकते हैं, डीएनए आरएनए को ब्रेक कर सकते हैं, पूरा साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट कर सकता है। ये सारे एंजाइम्स मिलकर लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स। सर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम? हाँ, गोल्गी apparatus से जब निकल रहा है वेसिकल में ही मेम्ब्रेन बाउंड होता है, तो बड़ा वेसिकल निकलने का तो ये मेम्ब्रेन बाउंड तो होगा ही। It's a membrane bound cell organelle which contains only lytic enzymes and hence the name lysosome. It is also regarded, however, this kind of metaphor, I don't know in English what they call it, suicide bags of the cell. What suicide bags? Kitchen of the cell, suicide bag of the cell, brain of the cell, powerhouse of the cell. ये सब घटिया बातें करना बंद करो। Leukocyte is a type of cell. Okay, ये सब बातें करना बंद करो, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो सुइसाइड बैग इसलिए बोला जा रहा है, बैग थोड़ी ना है ये बैग। चलो ये क्या करता है, सारे लाइटिक एंजाइम्स कैरी करते हैं। क्यों इसको सुइसाइड बैग कहा जा रहा है? सुन बे, बात कर रहा है क्लास में बैठ के, इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। कोलगेट कर ले। क्या हुआ? इधर देख। ये अगर कभी कभी सेल को लगता है कि मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा जिंदगी झंड है, तो सेल क्या करता है? अपने लाइसोसोम को अगर फटा दे तो सारे एंजाइम्स निकल जाएंगे। जो एंजाइम्स धीरे धीरे निकल रहा था और काम में लग रहा था कुछ डिग्रेड करने के लिए या डाइजेस्ट करने के लिए, फट गया तो सारे एंजाइम्स एक बार में निकल जाएंगे और पूरे सेल को डाइजेस्ट करके खत्म सेल। तो सेल ऐसा क्यों करेगा? जब सेल को लगेगा कि उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, लाइफ झंड है, सेल ऐसा कर लेगा। ये सर नो, अब बोलता है यस सर,
मतलब करने वाला है ऐसा वो। कौन कौन ऐसा सोचता होगा शायद मैं अपने लाइसोसोम को कंट्रोल कर पाता, सारे सेल्स के लाइसोसोम फटा दे भगवान, जिंदगी झंड है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता हूँ, गायब हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर कोई सेल इन्फेक्टेड हो जाए, क्या हो जाए, Infected. और दूसरे सेल्स के लिए हार्मफुल हो जाए, तो दूसरे सेल्स या खुद वो अपने सिग्नलिंग, उसको सिग्नल मिलता है कि भाई तू हार्मफुल हो चुका है, हम लोग को भी इन्फेक्ट करेगा, तब वो खुद ब खुद लाइसोसोम को फटा देता है और डाइजेस्ट कर लेता है। ये भी एक टाइप ऑफ डिफेंस है। एक सेल पूरा वायरस से भर चुका है, दूसरे सेल में फैलेगा, तो लाइसोसोम फट जाता है और उसका डेथ हो जाता है। इस चीज को एपोप्टोसिस या प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया? इज दिस क्लियर टू यू? लाइसोसोम इसीलिए सुसाइड कहा जाता है। थोड़ी ना ऐसा होगा गर्लफ्रेंड नहीं है तो फट जाएगी। इज दिस क्लियर? तो लाइसोसोम का फंक्शन, लाइसोसोम कैसा सेल ऑर्गेनेल है ये क्लियर है, लाइसोसोम कहां से बना है ये क्लियर है, राइट और रॉन्ग? तो सीख लिया लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम से राइमिंग क्या है सेल में, और एक राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में मैंने पढ़ा दिया, वो जीन्स वाले मतलब न्यूक्लियस वाला जो वीडियो था उसी में पढ़ा दिया कि यूकैरियोट में भी राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम होता है। कोई कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि नेम द सेल ऑर्गेनेली व्हिच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हाउएवर मुझे तो मन करता है कि आंसर में लिखूं अबे राइबोसोम सेल ऑर्गेनेली नहीं है, क्या पूछ रहा है तू ये, लेकिन क्या करोगे, तुम ऐसा लिख नहीं सकते, तुम आंसर लिख देना राइबोसोम, बट राइबोसोम इज नॉट अ सेल ऑर्गेनेली। अगेन सर रीजन, बिकॉज राइबोसोम इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। I don't consider it to be a cell organelle. I consider it to be a cell inclusion. This is clear. It is present in prokaryotic man. 70S ribosome. Yes, and 80S ribosome is present in eukaryotic. और दो सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम के। राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर? अच्छा, लाइसोसोम सीख गया, राइबोसोम सीख गया, और क्या सीखना है सर? और सीखना है दो इंपॉर्टेंट चीजें सर। अच्छा, लाइसोसोम का कोई फंक्शन पूछ दे तो क्या बताओगे? सुसाइड करेगा तो सेल नहीं। हाँ, ये बता सकते हो कि when the cell gets infected, the lysosome bursts and all the cell organ, all the digestive enzymes come out and digest of the cell. लेकिन इससे भी इंट्रासेलुलर डाइजेशन स्लोली धीरे-धीरे कुछ एंजाइम्स रिलीज कर, जब वो बर्स्ट नहीं होता है धीरे-धीरे एंजाइम्स रिलीज करता है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल है। इज दिस क्लियर टू यू? तो ये लिख देना। अब सिर्फ पढ़ना है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो कि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बाद में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इज दिस क्लियर टू यू? डिड यू लाइक द क्लास? यू एंजॉयड? यू अंडरस्टूड? मतलब बोल सकते हो कि मजा आया।